Hello my dear students, good afternoon and welcome back for the next lecture. In the previous lectures I have explained you about the fundamental forces in nature, the gravitational force and the electromagnetic force. Today I will tell you about something about strong nuclear forces. Strong nuclear forces. What are strong nuclear forces? The forces that bind the nucleons together in a nucleus and provide stability to the nucleus are called strong nuclear forces. वो forces जो न्यूक्लियॉन्स को, what are न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स वो चीजें हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. The neutrons and protons are called nucleons. तो जो न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन को, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कलर का न्यूट्रॉन बना रहा हूं और रेड कलर का प्रोटॉन बना रहा हूं. Now everyone knows they are approximately this of same size. Neutron is slightly bigger than the proton, slightly. साइज सेम रहता है. न्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल होता है, बट दिस इज प्लस ई. इलेक्ट्रॉन की चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, बट चार्ज इसका पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन. तो व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स आर दोज पार्टिकल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं. तो व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स? इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. वो फोर्स जो इनको आपस में जोड़ के रखती है, कंबाइन करके रखती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. And strong nuclear force also provides the stability. See, provides the stability to the nucleus. So those forces which bind the nucleons together in a nucleus and provide stability to the nucleus are called strong nuclear forces. I just want to tell you कि जो न्यूक्लियस होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, don't have any nuclear membrane. उसकी भी कवरिंग नहीं होती है, उसकी कोई वॉल्स नहीं होती. फिर भी जो उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वो आपस में जुड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी. एंड यू विल स्टडी अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी इन द 12th क्लास. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स. तो ये जो आपस में जो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, एक दूसरे के जोर से पकड़े रहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव फोर्स होती है. That force is called the strong nuclear force, and they provide stability. Now how they provide stability I will tell you later on. But अगर nuclear force ना हो, strong nuclear forces इसके बीच में ना हो, तो definitely nucleus can never be a stable. मैं थोड़ी देर में बताऊंगा अभी आपको. So what are the strong nuclear forces? This is the definition. The forces that bind the nucleons together in a nucleus and provide stability to the nucleus are called strong nuclear forces. आप देख रहे हैं मैं forces बोल रहा हूं. Forces. It's not a force. Forces. Now why it is called a forces? क्योंकि we have three types of nuclear forces. Three types of strong nuclear forces. First is between neutron and neutron. Second is between neutron and proton. Third is between proton and proton. See here, neutron और neutron के बीच में force, neutron और proton के बीच में, और proton और proton के, and all these forces are attractive in nature. Attractive in nature, provided the distance is not less than 0.5 Fermi. मैं भी Fermi भी बताऊंगा. So there are three types of forces, strong nuclear forces: neutron, neutron, proton, and proton. And all these three types of forces are attractive in nature. Now see, and it is charge independent. Charge पे depend नहीं करती, जैसे electromagnetic force charge पे depend करती है. Like charges हो तो repel करते हैं, unlike charges अट्रैक्ट करते हैं. नो सी, अगर हम एक किसी न्यूक्लियस की बात करते हैं, किसी की भी, हीलियम की बात करते हैं,
हीलियम में क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में हीलियम क्या, हीलियम 2 4, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता होगा, 2 प्रोटॉन्स होते होंगे और 2, यू कैन फाइंड इट, 2 ही न्यूट्रॉन्स होते होंगे। ये न्यूट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे, एक दूसरे को ये भी आपस में खींच रहे होंगे, इफ इट इज अ न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन सिंस न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल, तो तब तो ठीक है। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन में, इनके बीच में, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में इन रिपल्सिव फोर्स भी होगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स, देन द न्यूक्लियस विल बी स्टेबल। तो सी है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो चार्ज स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी, प्रोटॉन प्रोटॉन, ऑल दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन इन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों का चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ये 3 अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और एक रिपल्सिव फोर्स है। 3 अट्रैक्टिव है और इनमें से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी होती है। तो अगर रिपल्शन ज्यादा हो इन तीनों के सम के बराबर, तो ऑब्वियसली द न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तीनों फोर्सेस जो होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती है, तीनों का सम प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की रिपल्सिव फोर्स के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन होती है उससे ज्यादा होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस बाउंड रहता है। तो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट। तो इसके बीच में ये फोर्स और ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स। तो मैं आपको ग्राफ से भी एक्सप्लेन करूंगा, बट व्हाट आई वांट टू से, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन and proton proton, and all these 3 forces are charge independent। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं और attractive in nature हैं, provided the separation distance between these 2 nucleons should not be less than 0.5 Fermi, 0.5 Fermi, or you can say 0.7 Fermi। तो इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम डिस्टेंस हुआ तो ये फोर्सेस, ऑल्दो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो रिपल्सिव बन जाती हैं। तो आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। बट व्हाट इज 1 Fermi? यस, व्हाट इज 1 Fermi? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Fermi, स्मॉल f, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, और सिंबल्स में लिखना है 1f। Fermi, FM, Fermi, femto भी कहते हैं, that is 10⁻⁻15 meter, -15 Fermi। Once again, what is 1 Fermi? 10⁻⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज, एटम का साइज, जो स्मॉल डिस्टेंसेस हैं वो हम फर्मी में मेजर करते हैं, एंड 1 Fermi is 10⁻⁻15 मीटर। और अगर इनके बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस, अगर फर्मी में नाप लेते हैं, अगर 0.5 और यू कैन से 0.7 फर्मी के बीच में हो तो इट इज रिपल्सिव। द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस बिकम repulsive। In some books you will find it is 0.7, now it is latest, it is found that it is 0.5 Fermi। So whatever the distance between them, it should be less than 0.7 or you can say less than 0.5। तो अगर कम डिस्टेंस होगा तो इनके बीच में, हाँ डेफिनेटली इफ यू गो फॉर द रेडियस, अगर आप, न्यूट्रॉन बड़ा होता है, प्रोटॉन से स्लाइटली न्यूट्रॉन बड़ा होता है। अगर आप न्यूट्रॉन का रेडियस देखेंगे यू विल फाइंड इट इज अराउंड 0.8 Fermi, और डायमीटर आप देखेंगे तो इट इज 1.6 Fermi। तो यू विल फाइंड इट कि जो न्यूट्रॉन है उसका रेडियस कितना है, 0.8 Fermi। और हम डिस्टेंस हमेशा कहां से कहां नापते हैं, सेंटर टू सेंटर नापते हैं। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज वेरी लेस, मतलब जुड़ भी गया उसके अंदर भी गुजरे, तो देन यू कैन फाइंड कि द फोर्सेस बिटवीन देम इज
रिपल्सिव। और रिपल्सिव फोर्सेस होना जरूरी है, अदरवाइज अगर रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी तो न्यूक्लियस विल यू कैन से स्क्वीज्ड और यू कैन से कोलैप्स, तो छोटा होता जाएगा फिर। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या होता जाएगा, अट्रैक्ट और छोटा 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 होता जाएगा और एट लास्ट इट विल कोलैप्स टू अ पॉइंट और यू कैन से कोलैप्स। ऐसा नहीं होता है, तो जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस कम होता जाता है, बहुत कम, तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव होना स्टार्ट हो जाती है। एंड व्हेन द डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम 0.5 फर्मी और 0.7 to 0.5 फर्मी, तो उनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। लेट्स सी, आई एम ड्राइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, सेंटर में लेते हैं। दिस इज द फोर्स, ये फोर्स है 10⁻⁻⁴ न्यूटन में है। दिस इज ऑल्सो फोर्स 10⁻⁻⁴ न्यूटन में। दिस इज सेपरेशन डिस्टेंस, this is separation distance between two protons, between two protons लेते हैं। प्रोटॉन्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। न्यूट्रॉन में तो अट्रैक्टिव भी रहती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी अट्रैक्टिव रहती है क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। Let's take case of two protons, दो प्रोटॉन्स, ये लो यहां ड्रॉ कर देता हूं साइड में, यहां ड्रॉ कर देता हूं दो प्रोटॉन्स। हम पढ़ रहे हैं ये इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। अगर सेपरेशन डिस्टेंस हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर दें, तो क्या होगा? एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, सी हियर, ग्राफ इज लाइक दिस, शेप ऑफ द ग्राफ। और ये ऑलमोस्ट दिस इज इन फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर में डिस्टेंस है। दिस इज इन फर्मी, ये जो डिस्टेंस हम लिख रहे हैं 10⁻⁻15 मीटर में लिख रहे हैं, दैट इज 1 फर्मी में लिख रहे हैं, और यू कैन से फर्मी में लिख रहे हैं। दिस इज अबाउट 3 फर्मी। 3 फर्मी में तो ये बिल्कुल जीरो है, फोर्स बिकम जीरो। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये कौन सी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये वाला लोकेशन इट इज अबाउट 1 फर्मी, दिस इज अबाउट 2 फर्मी, दिस इज 0 फर्मी। What is 1 फर्मी? 10⁻⁻15 मीटर। You will find, see, the force between, इसको हम स्टडी करते हैं जैसे जैसे हम इसे क्लोज कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग फ्रॉम दिस साइड। अगर हम इसको क्लोज करते जा रहे हैं, इनके बीच में जो फोर्स होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। इट मींस इट इज अट्रैक्टिव। सी हियर, काफी फास्ट अट्रैक्टिव होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो फोर्स इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड बिकम मैक्सिमम। हियर इट इज मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग एंड इट इज अबाउट -3, तो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद अब हम उसको और क्लोज करते हैं। अगर हम आर कहां पहुंच गए? 1 मीटर, 1 फर्मी तक पहुंच गए, तो 1 फर्मी तक मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है इन दोनों के बीच में। उसके बाद थोड़ा अट्रैक्शन और हम क्लोज कर रहे हैं। अगर हम इसको और क्लोज कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना क्लोज हो सकता है? ज्यादा चिपक सकते हैं, लेकिन अभी चिपके नहीं। ये डिस्टेंस जो है, दिस इज अबाउट यू कैन से 0.7 फर्मी के अराउंड। जब ये इतना क्लोज आ जाते हैं तो वह और क्लोज होना बंद हो जाते हैं। सी अब और क्लोज होना बंद हो रहे हैं, एंड दिस इज अबाउट यू कैन से 0.5 to 0.7। तो यहां मैं 0.5 फर्मी लिख रहा हूं, और यू कैन से 0.7 लिख लेते हैं। यहां पे 0.7, यहां लिखेंगे 0.5। नाउ सी हियर, 0.7 पे क्या हो रहा है? फोर्स पॉजिटिव होती है। दिस इज अ पॉजिटिव फोर्स, दिस इज अ नेगेटिव फोर्स। पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मींस उनके साथ, उनके बीच में रिपल्शन होना शुरू होगी।
So at this location 0.7 Fermi you can say the repulsion starts. 1 Fermi पे basically start होती है, but repulsion doesn't show. 1 Fermi 0.7 Fermi तक भी वो पास आते जाते हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं and then they get separated. Now if this is a strong nuclear force, now let's draw the Coulomb's force of repulsion. तो Coulomb's force of repulsion ऐसे जाते हैं, 1/r² होता है उसका डिस्टेंस, तो वो कुछ इस फॉर्म में जाते हैं. यहां पे आके वो दोनों यहां पे यू कैन से दिस इज अबाउट 0.5 Fermi. यहां पे दोनों का सम 0 हो रहा है. किसका सम? यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड द न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दोनों का सम यहां आके 0 हो रहा है. यहां पे एक्चुअली यहां 0 होता है, बट इसको अगर आप ग्राफ ऊपर करेंगे तो यहां कहीं आएगा ये पॉइंट. So what I want to say, at 0.5 Fermi they stop, the nucleons stop going closer to each other, they start repelling. There is a Coulomb's repulsion जो उसके बीच में exist होना शुरू हो जाता है. The strong nuclear force 3 Fermi के about, उसके बाद तो ये 0 ही हो जाती है, और 0.5 Fermi. So you can say its range is very short. 0.5 Fermi से कहां तक होता है? मैक्सिमम 3 Fermi femtometer. So its range is very short. It only exists inside the nucleus. और ध्यान दें, न्यूक्लियस 3 Fermi के बाद ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है. इवन 2.5 Fermi में बहुत कम हो जाती है. इट इज मैक्सिमम एट 1 Fermi एंड 0 at 0.7 Fermi or 0.5 Fermi. ठीक है. This is a graph between the force and the separation distance. This is a strong nuclear force and this red color line is a, you can say, electrostatic force. Electrostatic force between what? Between two protons. Between two protons. तो ये रिपल्सिव है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव. अगर इन दोनों का सम करेंगे यू विल फाइंड इसके बियॉन्ड और यहां तक जो नेट फोर्स है वो नेगेटिव है. इट मींस दोनों प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगी. इसके बियॉन्ड रिपल्सिव ही रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी इसके 3 Fermi के बाद. इससे पहले भी यू विल फाइंड जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज्यादा बड़ी है. कहीं भी सम ले लेंगे, अगर आप यहां भी ले लेंगे तो इट इज पॉजिटिव, दिस फोर्स इज आल्सो पॉजिटिव, तो इट इज रिपल्सिव. यहां ले लेंगे तो यहां पे ये 0 है और ये पॉजिटिव है. स्टिल यहां पे भी देखें ये 0 है, दिस फोर्स इज 0 बट दिस इज positive. The net force is positive, therefore there is a repulsion. The repulsion starts at 0.7 Fermi. So what I want to say, this strong nuclear force exists and it is attractive in nature only in this region. See here, only in this region, from here to maximum you can say 3, only in this region. This is a strong nuclear force. It exists between the two nucleons and it binds the nucleons. Now what are the characteristics of strong nuclear forces? It is the strongest force in nature. दुनिया की सबसे strongest force यही है. और ये कितना strong है? 10⁻38 times stronger than the gravitational force. Gravitational force 10⁻38 times. सबसे weakest force कौन सी? Gravitational force. तो उससे 10⁻38 times stronger and 100 times stronger than electromagnetic force. ये है force. इससे ये 100 times stronger है for a given distance. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, it is 100 times stronger, आप लगा सकते हैं हिसाब. तो it is 100 times stronger than electromagnetic force. तो electromagnetic force से strong nuclear force 100 times stronger होती है for a fixed distance, provided both exist. दूसरा, it has a shortest range.
उसका बहुत कम रेंज है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है। और न्यूक्लियस के अंदर भी कहां तक रहती है? ओनली फ्रॉम 0.5 फर्मी टू 3 फर्मी। 0.5 फर्मी से लेके मैक्सिमम इट इज अप टू 3 फर्मी, और 3 फर्मी की बात है बिल्कुल जीरो हो जाती है। इट डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड द 3 फर्मी, डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। इट डजंट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो काफी दूर होते हैं न्यूक्लियस के, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है। तीसरा, चार्ज इंडिपेंडेंट, ये तो मैंने भी बताया, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। प्रोटॉन के बीच में भी ये अट्रैक्टिव हो रहती है, प्रोवाइडेड डिस्टेंस इज मोर देन 0.5 फर्मी। दे आर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस, बता दिए, बट दे बिकम रिपल्सिव इफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज लेस देन 0.5 फर्मी। तो यहाँ 0.5 फर्मी मैंने लिखा है, इट्स द लेटेस्ट थिंग, but in some books you will find it is 0.7 fermi, or in some books you will find 0.8 fermi, but 0.5 fermi is the latest one. And the fifth point, they do not obey inverse square law. They vary inversely with higher powers of distance between nucleons. See, they don't obey inverse square law. Inverse square law का पता है आपको, फोर्स जो होती है इनवर्सली स्क्वायर से कम हो जाती है, बट ये रैपिडली कम होती है। तो ये जो डिस्टेंस होगा स्क्वायर नहीं होगा, समथिंग 7th पावर में होता है, or maybe higher powers of the distance, r raised to power 7, or maybe r raised to power 6, 8, 9, 10, but it is very complex. But it is definitely doesn't obey inverse square law. This is the fifth law. Sixth property. Sixth one is it is non-conservative. It is non-conservative. ये तो नॉर्मल सी बात है, कंजर्वेटिव फोर्सेस बताया मैंने, these are non-conservative. It is non-central. It is non-central. ये भी कोई जरूरी नहीं कि ये सेंटर टू सेंटर एग्जिस्ट करती है. It is non-central. So we have 1, 2, 3, 4, 7 points. And the last, the important point is, जो मैं भी explain करने वाला हूँ, the exchange particle. Exchange particle. So this is a very important graph. I am rubbing it. Now the exchange particle. Now the exchange particle between the neutron and protons is the pi meson. The exchange particle. Exchange particle is between nucleons. Between nucleons is pi meson. Pi meson is an elementary particle. तो मैं आपको pi meson एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इट इज बियॉन्ड योर स्कोप, बट एक्सचेंज पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में व्हाट दे एक्सचेंज, जैसे दो प्लेयर होते हैं ना, दो बच्चे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, दे एक्सचेंज बॉल, एक बॉल दूसरे को देता है, दूसरा उसको वापस करता है, फिर उसको देता है, फिर वापस करता है। इससे क्या होता है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। वैसे ही दे व्हाट दे एक्सचेंज पाई meson between one another. Now this is little bit old. Now the जो आजकल जो हाई, अभी मैंने बताया आपको, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हमने डिस्कवर किए हैं, तो विद द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स आज हमने क्या पाया है, आज हम इसके बियॉन्ड चले गए। किसकी देन है ये, मैंने बताया आपको, हैड्रॉन कोलाइडर्स एंड अदर एक्सेलरेटर्स, जिसमें हम पार्टिकल्स को तोड़ते हैं और वो बिखरते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो आज हम बता रहे हैं, वी हैव गॉन इनटू इट, कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है। तो आज हम बता रहे हैं, वी आर गोइंग अहेड लिटिल बिट। आज हमें पता है जो न्यूट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। आज हमें पता है, जो इससे पहले नहीं पता था। इट वाज गिवन बाय युकावा, दिस थ्योरीज आर गिवन बाय युकावा, उसको नहीं मालूम था उस पर। आज हमें मालूम है कि जो न्यूट्रॉन है, इट इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड प्रोटॉन इज आल्सो मेड अप ऑफ क्वार्क्स। व्हाट आर क्वार्क्स? these are elementary, ये पार्टिकल्स हैं जो न्यूट्रॉन्स को मिलकर बनाते हैं, प्रोटॉन को भी बनाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, ये मैं आपको कभी 12th में पढ़ाऊंगा, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। और भी है, अप क्वार्क को हम यू लिखते हैं, डाउन क्वार्क को डी लिखते हैं। अप क्वार्क का चार्ज +2/3 होता है, इसका -1/3 होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो अब हिसाब करेंगे तो यू डी क्वार्क का बना होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो यू डी डी का बना होता है। सी यू डी, यू का कितना चार्ज है, 2/3।
ये होता है UDD का और वो होता है UUD, ये वाला। U कितना है 2/3, D कितना है -1/3, -1/3, what do you get? 0. The neutron is neutral, it is made up of UDD quark, और प्रोटॉन किसका होता है? UUD quark का होता है, it is 2/3 plus 2/3 and -1/3, you get E. तो क्वार्क्स आज हमें मालूम है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मेड अप ऑफ एनी क्वार्क्स। जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन्स है वो किसके बने हैं, उनके बीच में क्या चीज चल रही है? तो दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। मैंने बताया हमारे पास दो किस्म के क्वार्क्स हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क जो होता है वो +2/3 चार्ज है उसका। डाउन क्वार्क का कितना चार्ज है? -1/3। स्पिन्स भी होते हैं, मैं वो नहीं बता रहा हूं, ये अप इसलिए क्योंकि इसका स्पिन के कारण, ये डाउन नीचे। देयर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड इट आउट ऑफ योर स्कोप। जो न्यूट्रॉन है इट इज न्यूट्रल, तो व्हाट इज द क्वार्क कॉम्बिनेशन? ऐसा होता है वो U D ट्रायंगुलर बनाते हैं, एक्सचेंज करते हैं। Now what they exchange? They exchange gluon. See here, gluon. So this is the 9th part. If you go inside it, we will find जो इनके बीच में the exchange particle between quarks is gluon. Gluon, Gluon. It is also elementary to see the exchange particle between quarks is gluon, and gluon is a glue। जैसे glue होता है, चिपकाते हैं एक दूसरे को, एक चीज को दूसरी चीज से चिपकाते हैं, glue। तो ये वर्ड उसी से निकला, gluon। तो the gluon is an elementary particle which is exchanged between the quarks। इनके बीच में जो exchange particle है वो कौन सा है? Gluon। And what are these? These are quarks। And what are quarks? Quarks are the elementary particles, you can say। और ये quarks मिलके किसे बनाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को quarks नहीं बनाते। तो आज हम विद द डेवलपमेंट, आज हम ये पता लगा सके हैं कि जो न्यूट्रॉन है इट इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स, प्रोटॉन इज आल्सो मेड अप ऑफ क्वार्क्स, एंड द क्वार्क कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन है UDD। And what is the quark combination of proton? It is UUD। आप इसे चेक कर सकते हैं। और this is the 9th one। The exchange particle between quarks is gluon। तो इनके बीच में भी only न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में attractive force होती है। The strong nuclear force, if you go inside it, it also present between quarks। And उसमें जो exchange particle क्या है? Gluon है। So I have explained a lot of things about the strong nuclear force to you. The pi meson is the earlier theory, the latest theory is the, because you can say ahead of it is gluon. It is the strongest force in nature that exists between the nucleons and also between the quarks that are forming the nucleons. And it is a very strong force, and it is strong, and its range is from 0.5 Fermi to 3 Fermi. That's all for today. Thank you. Thank you very much.